All right, the biggest story that we're tracking for you right now are the protests that are currently underway across the country. The Vishwa Hindu Parishad is protesting against the death of Bangladeshi Hindu Deepu Chandra Das at several locations. The protests are being held across the nation seeking justice. Meanwhile, hundreds of people have gathered outside the Bangladesh High Commission in Delhi on Tuesday to protest. The protesters raised slogans and held banners against the Bangladesh government. This comes as Deepu Chandra Das, a 25-year-old garment factory worker, was lynched to death by a mob and his body was set on fire over alleged blasphemy in Mymensingh on December 18th. In fact, BHP and Bajrang Dal workers have held a protest outside the Bangladeshi government of Muhammad Yunus, setting fire to his publications near Sangoli, Rana and Nagar Police Circle in Hubli, Karnataka. The protesters have condemned the killing of a Hindu man, Deepu Chandra Das, in Bangladesh. Joining us live on the broadcast is my colleague Belly Thomas with more on this. Belly, could you take us through the details of the protest that is currently being organized over there, and they are setting fire to publications outside the office. Take us through the details. Shivani, the members of the Vishwa Hindu Parishad and the Bajrang Dal have been gathered at the prime spot in the Hubli district, and they are protesting against the lynching of Deepu Chandra Das, the Bangladeshi factory worker who was accused of blasphemy and was lynched to death. So they have it's a kind of an agitation that they are kind of registering with handing over a memorandum to the district commissioner, stating that they will have to meet up with the Bangladeshi government and take it up with them, stating that Deepu Chandra Das's family will have to get justice and his family will have to be protected, and there is no place in this world for such a heinous crime to happen. So this is the undertone of the protest that is being carried out. This has been organized by the members in large numbers, both belonging to the VHP and the Bajrang Dal, who have gathered in Hubli town. Around 500 members from each of these, both these outfits have organized this protest, where around 150 police personnel have been deployed for security. There, in the visuals, you can see they were burning publications of the Bangladeshi, Bangladeshi government's, what all the happenings or the development quite recently that were happening. So all these things, said and done, they want the all right, Belly, please do stay on with us. In fact, we have some more inputs on the story and more developments coming in. Vishwa Hindu Parishad activists have organized a march today at Ramadevi Chowk in Kanpur. The march had been organized to protest against the Bangladeshi government over the atrocities against Hindus and the mob lynching of Deepu Chandra Das. All right, so we can see that there are protests being conducted across the country. We saw it was first being held over there in Karnataka as well, and now we have an incident that is coming in from Kanpur as well, where Vishwa Hindu Parishad activists have organized this march at the Ramadevi Chowk in Kanpur. Now remember that all of these protests are being conducted after that horrific mob lynching of a Bangladeshi Hindu, Deepu Chandra Das, a 25-year-old garment factory worker. And remember that after he was lynched to death, his body was set on fire, and this was all over alleged blasphemy in Mymensingh on December 18th. So clearly we can see how this entire situation has escalated currently. Joining us on the broadcast is my colleague Zeba Khan with more on this. Zeba, कानपुर में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, इसके बारे में जरा हमें जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल शिवाजी, देखिए यहाँ पे बजरंग दल ने की जो एक प्रोटेस्ट किया है यहाँ पे देवी चौक के पास में, और कानपुर में जो बांग्लादेश
मांग करी है कि इस तरीके से जो वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हैं जिन पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर भारत सरकार को कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। और उन्होंने अपने वहाँ पे जो माइनॉरिटी में हिंदू रह रहे हैं जिनके ऊपर बांग्लादेश में लगातार अत्याचार होते चले आ रहे हैं उसको लेकर जो है भारत सरकार को कोई कड़ा कदम उठाते हुए उसको सुरक्षित करना चाहिए। जी ज़बा, जब हम ये पूरी मार्च की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो गैदर हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटी है उनके खिलाफ बहुत सारी एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं ज़बा, तो उनकी मांगे और क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहले जो बांग्लादेश में माइनॉरिटी हिंदूज हैं उनकी सुरक्षा को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं और इसके साथ ही जो यहाँ पर अभी भी जो मामला हुआ है जिसको लेकर उन्होंने लगातार भारत सरकार से मांग करी है, जो मॉब लिंचिंग करी गई है, जिस तरीके से उसकी हत्या करी गई है दास की, उसको लेकर उन्होंने भारत सरकार से न्याय की भी मांग करी और कहा है कि जो हिंदू हैं उनके हितों की भी रक्षा करनी चाहिए, उनके जानों की भी रक्षा करनी चाहिए। जी, All right, thank you so much Zeba for all those details. In fact, like we have been mentioning, there are protests that are being conducted all across the country, and I have my colleagues joining me live from the ground to give you an update on what the situation is like over there and what all protests are being conducted. Varsha Sahi is joining us from Lucknow, Javed Hussain is joining us from Delhi, Renik Datta is joining us from Kolkata, Chetan Shah is joining us from Bhopal, and Belly Thomas, as he has already joined us earlier from Bengaluru as well. So let me first go across to, in fact, Javed Hussain, who is joining us from Delhi. Javed, दिल्ली नेशनल कैपिटल है, यहाँ पर क्या प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, उसके बारे में ज़रा हमें जानकारी दीजिए। के दिन शाम करीब 5 बजे एक घटना हुई था 5 बजे घटना हुई थी और जिस तरीके से वेस्ट जो बांग्लादेश में जो मेमन सिंह भालुका जो जिले में जिस तरीके से दीपू सिंह की हत्या हुई उसको लेकर भारत देश की राजधानी दिल्ली में तमाम जो अलग अलग संगठन है वो पूरी तरीके से नाराज हैं और कई जो प्रदर्शन देखने को मिले। लेकिन हालांकि हाल में ही स्वतंत्रता जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को देखते हुए और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है और इस तरीके की अभी जो है परमिशन नहीं दी गई, लेकिन कहीं कुछ जगहों पे छोटे बड़े प्रदर्शन देखने को मिले हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से दीपू सिंह की हत्या उसके बाद कई हिंदू संगठन और हम आपको बता दें कि महमूद मदनी ने भी इसकी कड़ी निंदा की है और दिल्ली के कई जगहों पर इसकी नाराजगी देखने को मिली है। फिलहाल जो है जिस तरीके से पूरी घटना हुई और दीपू सिंह की हत्या हुई इसमें कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जिस तरीके से पूरी भीड़ जाकर उस गारमेंट फैक्ट्री में दीपू सिंह को वहां से खींचकर बाहर लाई और बांग्लादेश के पुलिस प्रशासन मेमन सिंह जिले के जो एसपी उनका यह कहना है कि पूरी घटना में जो है जानकारी जो है वो 8 बजे के आसपास दी गई जबकि घटना 5 बजे की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दीपू सिंह को बचाने की कोशिश की क्यों नहीं की गई। जिस तरीके से वहां के बांग्लादेश की पुलिस ने भी कहा कि सोशल मीडिया और उनके फोन को देखने से ऐसा साफ लगता है जांच में कि किसी तरीके की कोई भी जो है जो समुदाय एक विशेष समुदाय को लेकर जो आरोप लग रहा था उस तरह की कोई भी टिप्पणी या किसी तरीके का कोई भी सोशल मीडिया पर जो है कंटेंट अपलोड नहीं किया गया था। तो ऐसे में आखिर कौन वो लोग हैं जिन्होंने वहां पर भीड़ के शक्ल में दीपू सिंह की हत्या कर दी। उसके बाद जिस तरीके से बेरहमी से दीपू सिंह की हत्या की गई उसके बाद तमाम देश की अगर बात करें भारत देश की बात करें तो तमाम जो संगठन है हिंदू संगठन है अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर वो पूरी तरीके से नाराज हैं और इसको लेकर काफी रोष है। पूरे देश में सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश में है जो इसकी नाराजगी देखने को मिल रही है और जो लोग हैं वो काफी नाराज हैं। जिस तरीके से दीपू सिंह की हत्या हुई थी और दीपू सिंह को मारा गया है भीड़ में और वहां पर वो अपने आप को बचाने के लिए उस गारमेंट फैक्ट्री जहां वो काम करता था उसने दिन रात मेहनत करके अपनी जो है एक पूरी ईमानदारी से उस फैक्ट्री में दी। हालांकि फैक्ट्री के जो ऑनर्स हैं उन लोगों का कहना है कि उन्होंने जो है पूरी तरीके से बचाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में कि पुलिस को बांग्लादेश पुलिस जो कि मेमन सिंह जिला है भानुका जहाँ पे ये पूरी घटना हुई है उन्हें तकरीबन 5 बजे की घटना और 8 बजे इसकी जानकारी दी गई है और ऐसे में वहां पर जो है इस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा। अगर उन्हें पहले से अगर फैक्ट्री की तरफ बने रहे हमारे साथ जावेद। In fact, let me go across to Renik, who's joining us from Kolkata.
Rainik, West Bengal borders Bangladesh and we are seeing a lot of protests over there. वहाँ पर अभी कोलकाता में कैसा माहौल है, वहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं, कितने प्रोटेस्ट हुए हैं अभी वहाँ पर बांग्लादेश गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना जो कि हुई है बांग्लादेश में। एक 25 साल का नौजवान, उसको लिंच कर दिया गया, फिर बॉडी को फायर, इट्स बीन सेट ऑन फायर। सो वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रैनिक जो कि हमें मालूम पड़ रहा है। तो प्रोटेस्ट तो ऑब्वियसली हो रहे हैं कोलकाता में, उसके बारे में ज़रा हमें बताएं। देखिए, जिस तरीके से बांग्लादेश में दीपू दास का हत्या किया गया था, जिस तरीके से मॉब लिंचिंग किया गया था, उसके बाद उनको पेट से लटक कर आग लगाया गया था, जिंदा जला दिया गया था। ये घटना के बाद ही कोलकाता में प्रोटेस्ट भड़का है। सिर्फ कोलकाता नहीं, कोलकाता के साथ साथ ही पश्चिम बंगाल का हर एक जिला पर यह प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। कल भी दिखा गया था कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से प्रोटेस्ट मार्च किया गया था डेप्यूटी हाई कमीशन के सामने। वो लोग जब प्रोटेस्ट मार्च लेकर पहुंचे थे, इसी दौरान पुलिस की तरफ से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, पुलिस की तरफ को पीटा गया और उसके साथ साथ ही पुलिस टोटल 19 लोगों को ये पूरा मामले पर गिरफ्तार किया गया है। जैसे कि कोलकाता पुलिस की तरफ से 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और ये पूरा पुलिस का लाठीचार्ज में 5 लोग बुरी तरीके से घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती भी किया गया है। तो इसके बावजूद भी प्रोटेस्ट जो है वो रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज भी पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर एरिया है, उस बॉर्डर एरिया में प्रोटेस्ट देखने को मिला है। पेट्रोपोल जो बॉर्डर है, उस पेट्रोपोल बॉर्डर में प्रोटेस्ट किया गया है। जो हिंदू संगठन है उनके तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है। कल भी हिंदू संगठन की तरफ से हर एक बॉर्डर पे प्रोटेस्ट किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। यानी एक तरफ अगर देखा जाए तो दीपू चंद्र दास का मामले पर अभी तक 10 लोगों का गिरफ्तारी हो चुका है। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि स्पीडी ट्रायल किया जाएगा और उसके साथ साथ ही इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये पूरा मामले को let me also rope in वर्षा शाही who is joining us from लखनऊ। वर्षा, लखनऊ में क्या हाल है, वहां पर कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके बारे में जरा हमें बताएं। देखिए, राजधानी लखनऊ की सड़कों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो उतर चुके हैं। यहाँ पर पुतला भी फूंका जा रहा है और लगातार बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये राजधानी लखनऊ का हजरतगंज चौराहा है जहाँ पर आपको कार्यकर्ता नजर आ रहे होंगे। लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इनकी मांगे हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है उसको लेकर लगातार इनका विरोध प्रदर्शन है। विरोध प्रदर्शन क्या हमारी मांग ये है कि जिन हत्यारों को फांसी दी जाए, वरना जब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। जय श्री राम। मतलब किस तरीके से वृहद प्रदर्शन किया जा रहा है, मांगे हमारी तो सर्वप्रथम मांग है मोदी सरकार से कि वहाँ पे जो भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटियों के ऊपर, पुरुषों के ऊपर, तत्काल मोदी सरकार को संभव कार्रवाई हो सके तत्काल करनी चाहिए। और जो देश में जिहादी पल रहे, इस्लामिक जिहादी बांग्लादेशी लोग जो भारत का खा के भारत का ही विरोध करते हैं, उनको तत्काल रूप से देश से बाहर करना चाहिए। नहीं बजरंग दल और उसको छूट दे दी जाए, बजरंग दल खुद कार्रवाई कर लेगा, तत्काल इनको ढूंढ के इनको बाहर भगा देगा देश से। हिंदू एक नजर आ रहे हैं जी, हिंदू सब एक रहेंगे, हमेशा रहेंगे। बांग्लादेश हो चाहे कोई शहर हो, ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे। हम लोग को एक्शन चाहिए मोदी जी, खाली मुझे एक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बांग्लादेश में ये जो हमारे भाई के साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है, मेरी बहन के साथ हो सकता है, कुछ भी मार सकते हैं। किस तरीके से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक वृहद प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके साथ साथ क्योंकि पुतला भी फूंका गया है और पुतला को फूंकने के बाद इस तरीके से एक वृहद प्रदर्शन नजर आ रहा है। चौराहों पर एक अलग तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, जहाँ एक तरफ वहाँ के नेताओं का पुतला फूंका जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है उसको लेकर ये वृहद प्रदर्शन नजर आ रहा है। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर ये उतर चुके हैं और पूरी तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं कि इधर जो गश्त चल रही है, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो उसको देखते हुए ये प्रदर्शन बहुत ज्यादा उग्र लगातार नजर आ रहा है। और इस उग्र प्रदर्शन में भी लगातार उसी तरीके से जो मांगे हैं, इनकी जो चीजें नजर आ रही हैं वो भी देखने को मिल रही है कि आखिर बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है उसमें किस तरीके से हिंदुओं की एकता नजर आ रही है। हर तरफ वृहद प्रदर्शन के साथ साथ एक हुकार जो हिंदुओं की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर नजर आ रही है वो भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके का प्रदर्शन अभी राजधानी लखनऊ की सड़कों पर नजर आ रहा है।
मांग ये है कि जो वहाँ पे हिंदू भाई हैं उनको अच्छा बर्ताव हो, उनके साथ अत्याचार न हो, यही हम लोगों की मांगे हैं। क्योंकि एक राजधानी जी लखनऊ बिल्कुल मैम, हिंदू राजधानी नहीं पूरे भारत में नजर आएगी और सभी हिंदुओं को एक करना पड़ेगा और नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां ऐसे नहीं बच पाएंगी। जहां ये 30-40% से ज्यादा होते हैं ऐसे ही करते हैं, इनका समूल नाश करना पड़ेगा। इन मदरसा छाप का, इन कटेले जिहादियों का समूल नाश करना पड़ेगा सभी हिंदुओं को। और उन जिहादियों को बता दूं, हिंदू अगर ऐसे चेत गया, मात्र 3% हिंदू अगर रोड पे आ गया, इन जिहादियों को भागने की जगह नहीं मिलेगी और वही होगा। इन बांग्लादेशियों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए, यहाँ से भगाना चाहिए इनको, कटेलों को। किस तरीके से आज राजधानी लखनऊ की सड़कों पर विश्व हिंदू परिषद उतर चुका है, पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये विरोध प्रदर्शन इतना उग्र आप लोग कर रहे हैं। जी वर्षा, हम आपके पास आते रहेंगे। इनफैक्ट लेट मी आल्सो रोप इन चेतन शाह हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम भोपाल। चेतन, भोपाल में भी प्रोटेस्ट हुए हैं? अगर हुए हैं तो कहाँ पर हुए हैं, कितने लोग आए थे, उसके बारे में जरा हमें बताएं। बिल्कुल, देखिए राजधानी भोपाल में कल पहला दिन था और कल यहाँ पर हिंदू समाज के जो लोग हैं, हिंदू संगठन के और विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के, तो लगभग 10 से 12 संगठन थे, उनके लोगों ने प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन के साथ साथ पुलिस से अनुमति भी मांगी गई थी। और आज जबलपुर और जबलपुर के अलावा प्रदेश के कई इलाकों में हो रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में अलग तर्क देखा जा रहा है। यहाँ पर हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है केंद्र सरकार को, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और ये भी चेतावनी दी है कि 7 दिन तक बांग्लादेश के हालात को ठीक करें, वहां पर जो हिंदू हैं जिन पर अत्याचार हो रहे हैं उनको सुरक्षित तौर पर भारत लाया जाए और भारत की नागरिकता उन हिंदुओं को दी जाए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में या देश भर में जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं उनको यहाँ से भगाया जाए और बांग्लादेश उनको भेजा जाए। नहीं, जिस तरीके से घटनाक्रम बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है और अब देश भर में भी, मतलब भारत में भी जो बांग्लादेशी हैं उनके साथ भी इस तरह की घटना 7 दिन बाद होगी। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से यह भी मांग की है कि 50 लाख देश भर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं उनको बांग्लादेश जाने की अनुमति दी जाए, ताकि जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनको जाकर उनका अंत वहां पर किया जा सके। इसके अलावा बागेश्वर की ओर से आज बयान दिया गया। बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा है कि हिंदुओं को जागना होगा और बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर जो यात्रा वो निकाल रहे हैं, उस यात्रा में उनने साफ कहा है कि हिंदू राष्ट्र एक बार होना चाहिए, नहीं तो जिस तरीके के हालात आज बांग्लादेश में है उस तरीके के हालात आने वाले समय में भारत में भी हिंदुओं के साथ हो सकते हैं। ये बाबा बागेश्वर की ओर से कहा गया। इसके अलावा दिग्विजय सिंह की ओर से कहा गया कि जिस तरीके से जो बांग्लादेशी या अल्पसंख्यक जो देश भर में निवास कर रहे हैं उनके साथ जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, वही हरकतें आज जो है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हैं। यानी कि कहा जाए राजनेता राजनीति भी कर रहे हैं। रामेश्वर शर्मा हिंदूवादी नेता अपने आप को कहते हैं, उनने दिग्विजय सिंह पर तंज कसा हुआ और पाकिस्तान ISI का एजेंट उन्हें बताया है और साथ ही ये भी कहा है कि 10 साल जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहे वो अपने आप को ये भी तय नहीं कर पाए कि वो भारतवासी हैं या पाकिस्तान ISI के एजेंट है या जिहादी मानसिकताओं के जो संगठन है उनके प्रवक्ता दिग्विजय सिंह है। Let me go across to Belly, who is joining us from Bengaluru. Belly, this is a very tense situation in Bangladesh, obviously, and since we are a neighboring country, it tends to spill over, and now we are seeing Hindu minorities being lynched. They are being set on fire and being attacked and threatened in that country. So obviously there are protests across the country. We just saw a lot of my colleagues reporting from the ground. The VHP has taken this forward. But in Bengaluru, what is the situation like? How many protests have been held? Take us through the details. Shivani, it's not only in Bengaluru, but every districts where these VHP people are kind of have decided to protest against this heinous crime, the mob lynching of. Can you hear me? Yes, yes, I can hear you, Belly. Okay, so the members of the Vishwa Hindu Parishad and the Bajrang Dal have taken it up on themselves that they will be protesting. It will be a massive agitation for this lynching that has happened in Bangladesh, and they would certainly want the government to intervene
into the Bangladesh's affairs and make sure that the Hindu lives are, protected there, and they would want every measures to be taken from the Indian side, as there are a lot of Bangladeshi immigrants who are illegal immigrants who are still into the system of India, which they very well understand. And this is what is kind of turning into a turmoil where we are kind of so supportive, and we as a country, a big country, being so supportive with Bangladeshi people, and we are indeed tolerating them, and it is not fair on their part to treat the Hindu community there like that. So this, as an example, taken up by the Vishwa Hindu Parishad and the Bajrang Dal, they are no mood to leave it sooner or later, but they are going to find out what the government will have to address it with Bangladeshi government to figure out measures as to this kind of incident will not happen in the future, is what we gather as of now. Funny. Absolutely. In fact, Renick, if I can come back to you, जब हम ये पूरा इंसिडेंट भी देखते हैं, बहुत सारे अपील्स भी आ रहे हैं. अब जब इंसिडेंट हो चुका है, जो विक्टिम है उनकी वाइफ है, उन्होंने अपील किया इंडिया को, और उनके जो भाई हैं उन्होंने भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं जो कि सामने आ रहे हैं अगेंस्ट द बांग्लादेशी गवर्नमेंट के, उनके वजह से ये सब हो रहा है. तो उसके बारे में ज़रा हमें विस्तार से बताएं प्लीज़. हाँ, एकदम देखिए, जिस तरीके का घटना घटा है दीपू चंद्र दास के साथ, उसके बाद परिवार के तरफ से भी दावा किया जा रहा था कि इंटरिम गवर्नमेंट के तरफ से जिस तरीके से माइनॉरिटीज को सुरक्षा नहीं दिया गया है, या तो बोल सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस का गवर्नमेंट जिस तरीके से माइनॉरिटीज को सुरक्षा देने के लिए फेलियर हुआ है, उसी का वजह से आज दीपू चंद्र दास के साथ इस तरीके का घटना घटा है. परिवार की तरफ से दावा किया गया है कि पुलिस के पास इंफॉर्मेशन था, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था, मगर पुलिस करीब 3 घंटे बाद स्पॉट में पहुंचे जब पूरा हादसा हो चुका था. और अभी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से दीपू चंद्र दास का जो परिवार, उनका जिम्मेदारी लिया गया है. जैसे कि इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से आज ऐलान किया गया है कि दीपू चंद्र दास का जो परिवार है उसका पूरा जिम्मेदारी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से उठाया जाएगा. यानी दीपू चंद्र दास का जो बच्ची है, उनका जो वाइफ है और उनका जो पेरेंट्स है, उनका पूरा जो जिम्मेदारी, पूरा जो खर्चा वो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से उठाया जाएगा. और उसके साथ साथ एक कॉम्पेंसेशन देने के बाद भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है. मगर दूसरी तरफ परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जो वादा किया गया है उसके साथ साथ ही यह वादा किया जाए कि जो लोग इस पूरी घटना के साथ शामिल है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाएगा. और उसके साथ साथ ही जो माइनॉरिटीज अभी भी है बांग्लादेश में, जो माइनॉरिटीज बांग्लादेश में रहते हैं, उनका सुरक्षा का सही तरीके से इंतजाम किया जाएगा. ये पूरा घटना के बाद बांग्लादेश में भी लगातार प्रोटेस्ट जारी है. बांग्लादेश में जो ढाका में नेशनल प्रेस क्लब है उसके सामने हिंदू संगठनों की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है. लगातार जो छात्र संगठन है उनकी तरफ से भी ये पूरा घटना का प्रतिवाद किया जा रहा है. बांग्लादेश में जो Thank you so much, Renick, and all my other colleagues who in fact joined us on the broadcast and provided us with those ground updates on that story. With that, this is a wrap on this bulletin. We'll see you on the other side of this commercial.